Hello and welcome everyone. I am Anisha. I welcome all of you to my channel, that is Virtual Classes. So today in this video we are going to continue. We are going to continue your 6th chapter, where I have already uploaded the first part of this chapter, that is the beginnings of Indian civilization. So in our previous video we have learned about the definition of civilization, and yes, I'm going to explain this video both in English as well as in Hindi. And don't forget to subscribe to my channel and also like this video and share with your friends. So in our previous class we have understood about civilization, isn't it? And after that we have seen like from how the civilizations went from village to city, how development started begin. Like before it was a small village and that turned into hamlets, which we have done in our chapter number 4. I hope you remember, isn't it? It was mentioned over there, like the ancient human first they used to live in the caves and they used to do rock paintings and they used to wear skin of the animal, but slowly what happened, they started growing crop and that led to their settlement life. And when they started settling, they mostly settled into near the river area. And after that what happened, those small villages slowly started converted into city, and those cities started converted into towns. So we have done these in our previous class. So here we are going to start the Saraswati river. We are going to see this is a very short topic which is about Saraswati river. तो हमने अपने पिछले क्लास में किया था, जो ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था, उस पर हमने क्या देखा था, उसमें हमने सिविलाइजेशन की डिफिनीशन देखी थी, है कि नहीं, कि कैसे सिविलाइजेशन, अगर कोई सोसाइटी सिविलाइज्ड है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए. अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो वो पहला मैंने अपलोड कर लिया है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा. ठीक है. तो उसके बाद हमने देखा कि कैसे विलेजेस सिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो कि हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था ना. जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कैसे गुफाओं में रहते थे, वो शिकार करके खाते थे, एनिमल के स्किन वगैरह को वो पहनते थे. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने लग गए तो वो सेटल होने लग गए. तो वो जब सेटल होने लग गए तो वो छोटे छोटे गांव बनने लगे, छोटे छोटे गांव से फिर धीरे धीरे सिटी की तरफ बढ़ने लग गया, फिर सिटी से क्या हुआ, टाउन्स की तरफ बढ़ने लग गया. ठीक है. तो वैसे ही हमें बहुत सारे एक साइट्स मिली है, जो सिविलाइज्ड साइट्स मिली है. जो सबसे पुराना उनमें है, जो ये हम इस चैप्टर में कर रहे, द हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो उसमें ही एक नदी है सरस्वती रिवर. ठीक है. तो ये माना जाता है कि ये बहुत सालों पहले, बहुत हज़ारों सालों पहले सूख चुकी है ये नदी. ठीक है. तो हम इस नदी के बारे में थोड़ा देख लेते कि उसके आसपास क्या था. ठीक है. तो स्टार्ट कर लेते हैं. द मैप which is in the 6.3 on page 89 shows the Indus or the Sindhu and its 5 main tributaries. Important cities grew along those rivers such as Mohenjo-daro and Harappa. But there are also many sites along the Saraswati river which today goes by the name of Ghaggar in India and Hakra in Pakistan. Hence the name Ghaggar Hakra river. This river is now seasonal because it flows only during the rainy season. So the Saraswati river, which is in the figure, we'll see. First let us marked out this river. Here there is a map over here. We have done in our previous class also. See, यहाँ पे देखो, इस मैप में हम देख लेते सरस्वती रिवर कहाँ पे, और इसके आसपास जो सिटी है, देखो मोहनजोदारो यहाँ पे, ये रहा रिवर सरस्वती, है कि नहीं. तो ये मोहनजोदारो यहाँ पे है, और उसके बाद देखो ये इंडस रिवर यहाँ पे. इंडस रिवर के बारे में भी हम बात करेंगे. इनके ट्रिब्यूटरीज कौन से, झेलम, चेनाब, रवि, सुतलेस, ब्यास, ये सारे इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक है. और ये सरस्वती रिवर जो है यहाँ पे है. तो इसके आसपास भी साइट्स बहुत मिले हैं. ठीक है. तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. आई होप आपको समझ आ गया हो कहाँ पे है वो मैप में. तो हमने मार्क कर लिया है उस चीज़ को. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये सरस्वती रिवर है ये इंडस के साथ है, जो हमने अभी देखा ना, जिसको सिंधु भी बोला जाता था. और इनके 5 मेन ट्रिब्यूटरीज से जो हमने देखा, झेलम, चेनाब, सतलज, ब्यास, ये सारे इनके आसपास जो है सिटीज़ वगैरह डेवलप होने लगे, लोग सेटल होने लगे. क्यों सेटल होने लगे रिवर के आसपास? क्योंकि रिवर के आसपास क्या होता है, वहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल होता है कि नहीं. तो वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाता है. जब आप कुछ भी उगाते हो तो वो काफ़ी उपजाऊ हो जाता है वो जगह. और दूसरा फ़ायदा क्या है, पानी आपको मिल जाता है इस पास में ही. क्योंकि तब तो ऐसा सिस्टम नहीं था ना कि बोरोवेल से या ट्यूबवेल लगा ले, घर घर में पानी आ जाए. तो वो पानी के आसपास ही लोग सेटल करते होते थे. ठीक है. तो वहाँ पे जैसे सिटीज़ आए, मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज़ है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का है. ठीक है. तो
इनके साथ साथ क्या हुआ, बहुत सारे बाकी साइट्स भी हमें देखने को मिले। तो ये जो रिवर सरस्वती है, तो आज ये किस नाम से जाना जाता है, घाघर। जैसे इंडिया में इसको घाघर बोलते हैं क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान वाली साइड, दोनों साइड में है, ठीक है। तो और ये हकड़ा किस में बोलते हैं, पाकिस्तान में। तो ये इसका नाम क्या पड़ गया, घाघर हकड़ा रिवर। और ये रिवर अब क्या है, सीजनल है, मतलब जब मानसून सीज़न हो या रेनी सीज़न हो तब भी इसमें पानी रहती है, वरना ये पानी यहाँ पे नहीं रहता, वरना ये नदी सूख जाती है। मतलब सरस्वती रिवर जो है वो सूख गई, लेकिन इसके पास कौन सी रिवर अभी पाई जाती है, घाघर हकड़ा, ठीक है, जो कि इंडिया में हम घाघर बोलते हैं और पाकिस्तान में हकड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये सीजनल है, तो पेरिनियल नहीं है। देखो पेरिनियल मतलब जहाँ पे साल भर वहाँ पे पानी रहती है नदी पे, जैसे गंगा रिवर है कि नहीं, तो वहाँ पे वो साल भर पानी रहती है, वहाँ पे कभी वो सूखता नहीं है, ठीक है। कम हो जाता है लेकिन वो सूखता नहीं है। लेकिन ये रिवर क्या है, ये पूरा सूख जाता है, बस ये रेनी सीजन में जब बारिश का मौसम होता है, जब मानसून टाइम होता है, तभी यहाँ वहाँ पर ये पानी रहता है इस रिवर में, ठीक है। सो here in the map that we have just seen, we have seen these, it shows the Indus, Hindu, which is Sindhu, isn't it, and its 5 main tributaries which we have already marked, and along them, okay, so many cities grew, okay, and such as one of those important cities are this Mohenjo-daro and this Harappa, and along with them many other sites were also been discovered, okay, many other sites were also been excavated when which was done by the archaeologists, and even today also they are trying to excavate more and more and discovered more cities or civilization which was there in the ancient India. But and this river Saraswati, okay, this river Saraswati, it has been believed that this has already been dried up. So in its place there is another river which we call Ghaggar in India and Hakra in Pakistan. So what happened, this river is now seasonal, it is not perennial. So perennial means when there is water throughout the year, isn't it? But now this is seasonal, that means only during the rainfall season, only during the monsoon season, whenever it rains, only at that time you will find water over the river, water will flow over the river. Okay, so this Saraswati river is first mentioned in the Rig Veda. Rig Veda, remember, we have done the ancient text and we are going to do in more detail in our next chapter, that is chapter number 7. Okay, an ancient collection of prayer which we will read about in chapter 7. In this text, Saraswati is worshipped both as a goddess and a river flowing from the mountain. So here this Saraswati river was been first mentioned in the Rig Veda, and here Saraswati river has been worshipped. It has been considered as a sacred river, okay, and it has been worshipped as a goddess, and that the river which is flowing from the mountain to the sea. And later texts describe the river as drying up and eventually disappearing. See, afterwards whatever text we have found, we have studied that this Saraswati river, it is already drying up and eventually now there is no more Saraswati river, it is already disappeared, it is disappearing now. Okay, जो ये सरस्वती रिवर है इसका फर्स्ट में कहाँ पे मेंशन हुआ था, इसके बारे में ऋग वेदा में मेंशन हुआ था। आपको याद होगा ना, ऋग वेदा जो हमने किया था, टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 4 हमने किया था, वहाँ पे हमने देखा था ऋग वेदा पे जैसे एक सोर्स है, एक टेक्स्ट है, एंशिएंट टेक्स्ट है, जिसके बारे में हम और डिटेल में अच्छे से चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा अगला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो इस पर सबसे पहले ये सरस्वती रिवर का मेंशन किया गया था, ठीक है। तो उसके बाद ये और एक चीज़ हमें क्या देखने को मिली, इसी टेक्स्ट में सरस्वती रिवर जो है उसको वर्शिप किया जाता है, उसको जैसे गॉडेस, उसको एक गॉडेस की तरह उनको वर्शिप किया जाता था, और ये बोला जाता था कि ये रिवर है जो माउंटेन से आती है, सी में जाके बह जाती है, सी में जाके बहती है। तो उसके बाद जो लेटर टेक्स्ट है, जो उसके बाद जो किताबें आए, तो उसमें भी हमें क्या देखने को मिला, जो ये रिवर है ये सूखना स्टार्ट कर दिया, और आज के टाइम में क्या है, ये रिवर है ही नहीं, ये ऑलरेडी डिसअपियर हो चुकी है, ये रिवर मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो ये था सरस्वती रिवर के बारे में थोड़ा सा जो छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग में हम किस पे कंसंट्रेट करेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदारो, जैसे प्लानिंग वगैरह कैसी थी इनकी, किस टाइप की स्ट्रक्चर थी, बिल्डिंग्स कैसी थी, क्या क्या था वहाँ पे स्ट्रीट्स कैसे थे, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम क्या था, और कैसा स्ट्रक्चर हमें मिला, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू दिस टाउन प्लानिंग। अंडर हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सिटीज़ ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ओके, एंड अबाउट देयर स्ट्रीट एंड व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स दैट वी हैव बीन डिस्कवर्ड। ऑलराइट, so let us continue. Harappa and Mohenjo-daro, which is now in Pakistan. So both of these cities are now where?
in Pakistan. Before it was in Indian subcontinent. Okay, and I hope why I am mentioning as Indian subcontinent, I have already told the meaning, isn't it? If you have watched my previous classes, you will be knowing properly. So where the first two cities of this civilization to be discovered? So these two cities were the first which was been discovered. Their identification goes back to 1924, a century ago. So almost 100 years ago. Now it is 2024, isn't it? So in 1929, when it was excavated, okay, by the archaeologists, these two cities were discovered. And several other sites followed in the Indus Plain, which is why the civilization was initially called the Indus Valley Civilization. See, along with these two cities, okay, in this Indus plain, the Indus, the river, near the river Indus, so many other sites were also been discovered. So that is also why this name Indus Valley Civilization is been given to this civilization, okay, to these various sites, because it was near the Indus plains, Indus plain and Indus river. It is around the Indus plain which is near the Indus river. okay. सो यहाँ पे देखो, जो सबसे पहला सिटी जो डिस्कवर हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है, वो है हड़प्पा और मोहनजोदारो। और ये क्या कब इनको डिस्कवर किया था? 1924 में, जो कि ठीक 100 साल पहले, एग्जैक्टली सेंचुरी अगो हो, है कि नहीं। तो इनके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे साइट्स भी पाए गए, बहुत सारे सेटलमेंट्स भी पाए गए जो कि इंडस प्लेन्स में ही थे। तो इसी रीज़न से इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो इनके कई, इस सिविलाइजेशन के कई नाम हैं, ठीक है। तो इस रीज़न से इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम भी रखा गया। तो बाद में क्या हुआ? लेटर ऑन अदर मेजर सिटीज़ सच एज ढोलावीरा, okay, Dholavira which is in Gujarat, Rakhigari which is in Haryana, Ganwirwala which is in Cholistan desert of Pakistan, and hundreds of smaller sites such as, let us see here, such as Lothal in Gujarat were discovered. Okay, Lothal in Gujarat were discovered and some of them excavated. See, later on again, along with this Mohenjo-daro and Harappa, so many other major cities were also discovered. For example, Dholavira which is in Gujarat, and Rakhigari which is in Haryana, and Ganwiriwala which is in the Cholistan desert, of which is now in Pakistan, okay, deserts of Pakistan, and hundreds of other smaller sites such as Lothal in Gujarat. These were all discovered, okay, and some of them were excavated. सो क्या हुआ बाद में, जो हड़प्पा और मोहनजोदारो के बाद उनके साथ साथ बहुत सारे साइट्स भी डिस्कवर्ड हुए, जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम मेंशन किया गया है। तो इसके बाद इसको हम देखेंगे मैप में भी, सारा मैप में दिया हुआ है, ठीक है। जो आपका मैप हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले, उसमें जैसे कि ढोलावीरा डिस्कवर्ड हुआ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी फेमस रहा है, और जो कि गुजरात में है। और दूसरा है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। दूसरा है गनवीरीवाला जो कि पाकिस्तान के डेजर्ट में है, चोलिस्तान में, ठीक है। और उसके साथ साथ बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर साइट्स जैसे कि लोथाल जो कि गुजरात में सारे डिस्कवर्ड किए गए, और इनमें से बहुत सारे एक्सकवेटेड भी किए गए, मंदिर के बारे में पढ़ा गया और जाना गया कि चलो क्या क्या है। और सच डिस्कवरीज कंटिन्यूड इवन टुडे, तो आज के टाइम तक भी ये डिस्कवरीज जारी है, ठीक है। जो एक्सकवेशन है, जो साइट्स वगैरह में एक्सकवेट करते हैं, कहाँ पे क्या मिलता है, कुछ सुराग मिलता है, क्या मिलता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट आज भी इसको एक्सकवेट कर रहे हैं, आज भी उसको और पढ़ रहे हैं, ठीक है। It is interesting to note that the Saraswati basin includes not only two major cities, which is Rakhigari and Ganwiriwala, but also several smaller ones, Farmana in Haryana, Kalibangan in Rajasthan, and few towns which is Birana and Banwali both in Haryana. Indeed, the map makes clear the high density of sites in this region. So one more interesting thing is there, these along with these Saraswati basin, okay, we'll find out all these name, will mark all this name in the map also, okay. So what happened, this include not only these two major cities which is Rakhigari or Ganwirla, okay, Ganwiriwala, but also several other small ones were also found, like Farmana in Haryana, Kalibangan in Rajasthan, and few more towns like Birana and Banwali both in Haryana. So in the map it makes more clearer, okay, like high density, high amount of sites were been discovered in that region. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये सरस्वती बेसिन है, तो यहाँ पे बस ये जो टू सिटीज़ थी राखीगढ़ी और ये गनवीरवाला, ये थोड़ी बड़े सिटीज़ थे, लेकिन इनके साथ साथ बहुत सारे छोटे बाकी सिटीज़ को भी डिस्कवर्ड किया गया, जैसे कि फरमाना है जो कि हरियाणा में है, कालीबंगन है जो कि अब राजस्थान में है, ठीक है।
और फ्यू टाउन्स जैसे कि भिराना, बनवाली, जो कि दोनों हरियाणा में है। तो ये जो मैप हमें मैप में सारा इनके बारे में दिखाया हुआ है। तो ये मैप हमें क्या दिखाता है कि जो ये रीजन है यहाँ पे बहुत सारे साइट्स, बहुत ही ज़्यादा नंबर्स के साइट डिस्कवर्ड हुए। तो ये मैप को हम आइए एक बार और देख लेते हैं, और ये जो नाम अभी हमने पढ़े ये हम डिस्कवर कर लेते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को हम अभी डिटेल में कर रहे हैं। देखो कौन कौन से नाम थे जो अभी हमने पढ़े। एक तो ये था ना गनवीरी वाला, बिराना था, फरमाना था, राखीगढ़ी था, बनवाली था, कालीबंगन था, है कि नहीं, ढोलावीरा यहाँ पे है, तो लोथाल यहाँ पे है। तो ये देखो, ये सारा नॉर्थ वेस्ट रीजन ही है इंडिया का। ठीक है, इंडियन सब कंटिनेंट का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ये सारा। तो ये हमने देख लिया ना कहाँ कहाँ पे ये साइट्स है। तो ये देखो बहुत सारे बाकी साइट्स भी दिया हुआ है ना, जैसे कि मंडा है, दबरकोट है, ये रहा हड़प्पा, यहाँ पे मुसाखेल, यहाँ पे चन्हू दारो, देखिए बालाकोट, है ना। बहुत सारे ऐसे साइट्स हमें मेंशन यहाँ पे देखने को मिले इस रीजन में, इस इंदस रिवर के आसपास के रीजन में। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। द लार्जर हड़प्पा सिटीज़ वेर बिल्ड अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज प्लान। तो हड़प्पा सिटीज़ जो है उनको बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करके, प्रॉपर प्लान करके बनाया गया था। दे हैड वाइड स्ट्रीट, जो कि हम अभी देखेंगे इस फिगर में। ठीक है, बाकी आने वाले फिगर में, which were often oriented to cardinal direction. Most cities seems to have been surrounded by fortification and had two distinct parts: the upper town where the local elite probably lived, and the lower town where the common people lived. See, these Harappa cities, okay, it was been discovered that it has been made by proper planning, okay, and they had a very wide street, which you will see in the picture is given, okay, and these where the streets were also very oriented to the cardinal direction. Cardinal direction means north, south, east, west, okay. So, and most of the cities, these cities were been surrounded by fortification. So what is this fortification? A massive wall surrounding a settlement or city, generally for protective purpose. See, in and around cities during those time, what happened, there used to be war and all, isn't it? So in order to protect their cities, what they used to do, they used to build huge wall, okay, huge walls which will be surrounding all their area, okay. So all their area, it will be again proper fortified for the protection of the people. Like in movies also, if you have seen, if you have observed that during movies which has been related with the kings and maharajas and all, you will see near their kingdoms and all, what will you see? Big walls with big gates are being made, isn't it? So those are not known as fortification, okay. And here in this town, what happened, two parts were found. The upper town, which where these local elite people lived. Elite here means the higher group of people, okay. Here the word elite refers to the higher layers of the society, such as rulers, officials, administrators, and often priests. Those were little rich, you can say, okay, little of higher society, higher profile. They used to live in the upper town area, and in the lower town area the common people lived. See, if you have watched the movie Mohenjo-daro, okay, of Hrithik Roshan, you will see proper, like they used to say nichla wala hissa and upar wala hissa, isn't it? So in that upper town, these rich people, respectable citizens, for example rulers, officials, and administrators used to live, and priests used to live, okay. And in the lower, the other common people used to live. So यहाँ पे क्या हुआ, देखो जो ये हड़प्पा सिटी है, इसको बहुत अच्छे से प्लान करके, वेल प्लान सिटी ये पाया गया है, ठीक है, क्योंकि अच्छे से इसको प्लान करके बनाया गया था। और उनके स्ट्रीट्स वगैरह भी बहुत वाइड थे, उनके रास्ते जो थे बहुत ही वाइड थे, बहुत बड़े बड़े थे, और जो अच्छे से वो डायरेक्शंस में, जैसे कार्डिनल डायरेक्शन में इन्होंने बनाया गया था, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऐसे करके, ठीक है, इस और जाता था हर रास्ता। और ये क्या था, जो सिटीज़ थे वे सारे वॉल्स जैसे फोर्टिफाइड थे। जो हमने देखा फोर्टिफाइड का मीनिंग, जो जैसे आसपास पूरा एक वॉल बना देते ना कि एरिया के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में एक कॉलोनी, एक सोसाइटी है, तो सोसाइटी में एक बड़े बड़े वॉल्स वगैरह बना दे, तो क्या वो प्रोटेक्शन के लिए हो गया, उस जगह के लोगों के लिए। तो लेकिन तब के टाइम में क्या होता था, ये इन्होंने वॉल क्यों बनाया, तो क्योंकि तब के टाइम में क्या होता था, ये वार्स वगैरह, लड़ाई झगड़ा ये बहुत होता था कैप्चर करने के लिए, है कि नहीं। तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने सिटीज़ को, अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बड़े बड़े ऐसे वॉल्स और गेट्स वगैरह बनाते थे। जैसे कि आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, जो महाराजा राजा के मूवीज़ वगैरह दिखाते हैं, उसमें बड़े बड़े वॉल्स होते हैं उनके किंगडम्स के आसपास, है ना। तो ऐसे करके ये क्यों बनाया था, ये प्रोटेक्शन के लिए बनाया था। और एक और चीज़ हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे हड़प्पा में,
ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक ऊपर वाला हिस्सा था और एक नीचा वाला हिस्सा था, जिसपे अपर टाउन और लोअर टाउन के नाम से जाना जाता है। जो अपर टाउन में क्या था, ये इलाइट पीपल रहते थे, जो समाज के जैसे होते हैं ना, जैसे कि रूलर्स, ऑफिशियल्स, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स, पुजारी वगैरह, ये प्रीस्ट, ये सब वहाँ पे रहते थे ऊपर वाले हिस्से में। और जो निचला वाला हिस्सा में कौन रहता था, कॉमन पीपल रहते थे, बाकी पीपल। ठीक है, अगर आपने वो मूवी देखी है मोहनजोदारो, तो उस पर आप ऑब्जर्व करना, उस पर दिखाया हुआ अच्छे से कि निचले वाले हिस्से में जैसे मार्केट वगैरह लगता है, ऊपर वाले हिस्से में जैसे जाने के लिए नहीं देता, एक अलग से उनको एक मोहर की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक कुछ मोहर ही बोलते हैं तब। तो अगर उसके पास वो मोहर है, तो वो जैसे सिक्का की तरह होता है एक बड़ा सा, तो वो जिसके पास है वही उस पर जा सकता है, ऐसे आना जाना भी वहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आप वो मूवी देखोगे तो आप अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि, और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर देखो कि वहाँ पे ग्रेट बात वगैरह के बारे में भी अच्छे से दिखाया हुआ है। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। सो सम लार्ज बिल्डिंग्स seems to have been used for collective purpose, for intense warehouse where goods to be transported were stored. Individual houses of various size lined the streets and smaller land. Interestingly, the quality of construction was the same for small and big house. All those buildings were generally made of bricks. See, another site which has been discovered is that another structure, let us say, not site, which is these, we are studying about Harappa and Mohenjo-daro. Okay, so here what happened, they found large buildings also, like it might be some sort of factory or warehouse where they used to keep their goods, and these objects were also been found. Okay, these goods were also been found which were incomplete, some of them were complete. Okay, and these were stored for trading purpose. Okay, so they will be sending this to other place, and again whatever they need, again they will be importing those things. Okay, and with that, individual houses were also been found. Okay, the common people houses were also been found, which were of various sizes, some were big and some were small. But what happened, interesting fact is there, all the quality of the house for the construction which is been made by the bricks, the quality was same. It was not that a small house were been made with a little degraded quality of bricks. The quality was same. That means this all houses were been made and planned at the same time. Okay, तो यहाँ पे क्या है, और हमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी हमें मिले, जहाँ की जैसे कि फैक्ट्री टाइप होता है ना, जहाँ पे सारे जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना लेते थे तब के टाइम में, स्टोन से या मेटल से या कुछ भी ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते थे, सब कुछ वहाँ उस स्टोर में, जो बड़े बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे स्टोर करके रखते थे, जिसको हम वेयर हाउस भी बोलते हैं, है ना। जैसे और फिनिश गुड्स, क्योंकि जब एक्सकवेट किया गया वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स पाए गए, ठीक है, जो कि बन भी चुके थे और जो बन रहे थे वो प्रोसेस में थे। और हम इसमें देखेंगे भी कि ये समाप्त कैसे हुआ और क्या हुआ, रीजंस भी कुछ दिए गए हैं जो कि एग्जैक्टली पता नहीं है हमें कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो घर थे, वहाँ पे लोगों के घरों थे जो बड़े, बहुत सारे साइजेस में देखने को मिले, कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे। ठीक है, जो स्मॉलर लैंड में थे, कुछ बड़े लैंड में थे। लेकिन क्या था, एक वो चीज़ क्या था, जो भी अगर छोटा हो या बड़ा घर हो, वो सारा एक ही क्वालिटी के ब्रिक से बनाया गया था, मतलब एक ही टाइम में वो बना गया था अच्छे से प्लान करके। ठीक है, वहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं था कि चलो बड़े घर में अच्छे क्वालिटी वाला ब्रिक यूज़ करते हैं या वो वाला यूज़ करते हैं, छोटे घर में हम थोड़ा सा डिग्रेड, थोड़े से बेकार क्वालिटी की यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, सारा सेम क्वालिटी का ब्रिक्स वहाँ पे यूज़ हुआ था। ठीक है, तो इसके साथ हमें और एक स्ट्रक्चर मिला, ठीक है, जो कि ग्रेट बात है। द पर्पस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट। सो ये जो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये साइट को खोजा है ना, एक्सकवेट किया है, और तब के टाइम का ऐसा कोई है भी नहीं कि हमें बता सके अच्छा ठीक है ये इस पर्पस के लिए यूज़ हुआ था, ये हुआ था। तो ये बस जो भी हमें सुराग मिलता है, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट का सुराग वगैरह मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, उस आधार पे ये क्या कर रहे हैं, ये बस एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये सारे सोर्सेस है इनके लिए, ठीक है, तो ये हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं जो भी इनको मिल रहा है। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, बस एक प्रिडिक्शन ही है, ठीक है, एग्जैक्टली पता नहीं कि अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसा ही था या वैसा ही था। बस जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जो भी सुराग मिल रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट्स मिल रहा है, उनको स्टडी करके ये एक नतीजे में पहुँचे आर्कियोलॉजिस्ट। तो उसके बाद हमें यहाँ पे ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ने के लिए। देखो, द पर्पस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट। इसलिए ये कुछ जो स्ट्रक्चर्स है ये स्टिल भी हम मतलब स्टिल ये डिबेट में ये, क्योंकि एग्जैक्टली रीज़न नहीं पता है, ठीक है, कि ये क्यों बनाया गया था। कि जैसे कि यहाँ पे और एक केस है दूसरा, ग्रेट बात।
ठीक है। दिस इज़ द केस फॉर द फेमस ग्रेट बाथ। आपने भी सुना होगा ना ग्रेट बाथ के बारे में, मोहनजोदारो में जो पाया गया है। तो हम देखेंगे उसकी पिक्चर भी जो फिगर 6.6 में दिया हुआ है। अ स्मॉल बट एलाबोरेटेड टैंक विथ मेजर अबाउट 12 into 7 meters and had water proving materials such as natural bitumen and a foam of tar applied on the top carefully laid out bricks. So here they found another more structure which they have named as great bath. Why great bath? Because it is a very great, like it looks like a swimming pool. Okay, we will observe here in the picture as well. It looks like a swimming pool and its size is about 12 into 7 meters. All right, and they were been made properly. The bricks were been made waterproofing so that it will not be, because water will be stored there, isn't it? So in order to make it waterproof, materials such as this natural bitumen, which is a form of tar which we used to make like koilas, you know, like when we used to make a road, we used that sticky black substance, isn't it? So such substance were being used, okay, in order to make this it was applied carefully in the bricks, okay, bricks laid out properly. सो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये ग्रेट बाथ हमें जो मिला है, ये इसका साइज़ था 12 into 7। ये एक स्विमिंग पूल की तरह ही, अगर हम देखा जाए तो ये टैंक है, यहाँ पे वेल भी पाया गया है, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या किया, जैसे वाटर प्रूफ करने के लिए, जैसे कि पानी में रह के वो ताकि गले ना या फिर उस पर काई वगैरह ना, इन्होंने क्या किया था, ब्रिक्स के ऊपर ये टार का क्या करते हैं, लेयर लगा ले। जो कोयलास होता है ना, जो हम जब हम रास्ता बनाते तो आपने देखा है वो जो ब्लैक कलर का, काला कलर का स्टिकी सब्सटेंस जो होता है, तो वो उस ब्रिक में क्या किया इन्होंने, सारा ऊपर से इसको अच्छे से लगा दिया था ताकि वो उस पर काई वगैरह ना आए, ठीक है। और जो ये टैंक का टाइप में, ये देखो अभी हम पिक्चर भी देखेंगे इसका, जो हम स्ट्रीट के बारे में बात कर रहे थे ना, जो वाइड स्ट्रीट वो है, वी वर टॉकिंग अबाउट द वाइड स्ट्रीट, इजंट इट? सो दिस इज द सी हाउ मच वाइड इज द स्ट्रीट. A wide street at Kalibangan, Rajasthan in the Lower Town area. So this is in the Lower Town area of the Rajasthan, which is in Kalibangan. Okay. And this is the housing area that we have talked now, like see, similar in proper line they made their housing area in Dholavira. Here this is in Dholavira, okay, with perpendicular street in the middle town. See here you will find one more. In Harappa there were 2 parts, isn't it? But in Dholavira there were 3 parts, okay. There were 3 parts, like here there was a middle town as well, upper town, middle town and lower town. So Dholavira had 3 distinct zones, not as 2 in these other cities. Also in this city, the foundation of most of the buildings were made with stone. And one more, another important thing of this Dholavira, this foundation, see this foundation, these were all been made by stone. In other Harappa and Mohenjo-daro, it has been made by bricks, isn't it? But here you will find the foundation which is made by the stones, okay. So we will see the picture of great bath also as well here. See, the tank was surrounded by small rooms, one of which contained a well. There was a drain in one corner of the tank to empty it from time to time and refill it with fresh water. See, this great bath, okay, this great bath, there were small rooms also surrounded by small rooms. Might be they have been used these for changing purpose or anything, isn't it? We don't know the reason. And there was one well also, and there was one drain also in the corner, so that they can refill the water and with fresh water from time to time. अब जो ये ग्रेट बाथ की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या था, इसके आसपास जो छोटे छोटे रूम्स भी बनाए गए थे, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि रूम्स किस पर्पस से बनाए गए थे, या तो कुछ चेंजिंग पर्पस के लिए बनाया गया था, या फिर रहने के लिए बनाया गया था, या जब भी यहाँ पे पूजा वगैरह होती है, कुछ भी होती है तो लोगों को रहने के लिए बनाया जाता है, वो हमें रीज़न पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ क्या मिला, वेल मिला, यहाँ पे ड्रेन मिला। तो ये वेल और ड्रेन क्यों मिला, जैसे वाटर था, वेल तो वाटर के लिए होता है ना, तो ड्रेन किस लिए था, ताकि जो ये टैंक है यहाँ पे जो ये खाली कर सके फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे स्विमिंग पूल का वाटर भी हम टाइम टू टाइम खाली करके नया पानी रिफ़िल करते ना, उसी पर्पज़ के लिए। देखो कितना एडवांस टेक्निक इन्होंने यूज़ किया था तब के टाइम में भी, है ना। तो हम ये जैसे पढ़ रहे हैं, आज से करीब 3-4 साल हज़ार पहले की बात हम पर कर रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छे से इन्होंने बनाए गए थे। देखो ये है ग्रेट बाथ पिक्चर है, ठीक है, मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ। देखो इस एरिया पे ये वाटर मतलब फील किया जाता था, जैसे सीढ़ी से नीचे आते थे, और ये आसपास यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स इन्होंने बनाए हुए थे। जैसे कि आप अगर मूवी देखोगे ना मोहनजोदारो, तो वहाँ पे ये उन्होंने क्या किया, इस ग्रेट बाथ को एक रिचुअल के लिए उन्होंने यूज़ किया हुआ है, प्रॉपर पूजा वगैरह करने के लिए। तो अगर आप वो देखोगे ना, तो आपको काफ़ी सारा चीज़ समझ में भी आ जाएगा इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो रीज़न क्या था ऐसे स्ट्रक्चर का, तो कुछ रीजंस आर्कियोलॉजिस्ट ने दिया हुआ है, ठीक है। तो उस रीज़न को हम देख लेते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सच अ स्ट्रक्चर? Archaeologists have proposed several possible interpretations.
सेवरल रीज़न इन्होंने दिया है, जैसे कि माइट बी फॉर पब्लिक बाथ फॉर पीपल, या फिर बाथ फॉर रॉयल फैमिली ओनली, और अ टैंक यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल्स. Or the first interpretation is now ruled out because it turns out that in the cities most house had individual bathroom. So see the reason which they have given, like first reason is the public bath. So this doesn't stand. Why? Because in most of the houses that we have discovered, they have an individual bathroom. So that doesn't mean that this is for public bath, isn't it? So the next reason is a bath for the royal family only, or a tank which is used for religious ritual. So we don't know the reason. So several reasons are given here. Okay. तो यहाँ पे ये जैसे ये जो ग्रेट बात है किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया होगा, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ रीज़न दिया है. तो जिसमें से जो इन्होंने फर्स्ट रीज़न दिया, जैसे कि पब्लिक बात होगा, कॉमन बात होता है ना, जैसे कि कॉमन स्विमिंग पूल वो टाइप होता होगा. तो लेकिन ये भी मतलब अच्छे से ये मतलब इंटरप्रेट नहीं होता. क्यों? क्योंकि जो घर वहाँ पे पाए गए, वहाँ पे सबके घर में क्या था, सबके घर में बाथरूम था. तो इसका मतलब ये तो नहीं कि चलो पब्लिक बाथरूम था, वो पब्लिक बाथरूम भी नहीं था. या तो ये दूसरा रीज़न दिया है कि चलो एक बात फॉर जो रॉयल फैमिली, राजा महाराजाओं के सिर्फ उनके फैमिली के लिए है बात है. तो या जैसे होता है ना प्राइवेट स्विमिंग पूल होता होगा, या फिर ये एक टैंक बनाया है बस एक रिलीजियस रिचुअल्स के लिए, कुछ पूजा वगैरह करना हो, जैसे कि साल में 1-2 बार यूज़ होता हो, तब के टाइम में यूज़ करते हैं. तो ये हमें रीज़न पता ही नहीं है, क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला जिससे कि हमें रीज़न पता चले. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. सो आप इस पर आप एक डिबेट भी कर सकते हो क्लास में. जो लास्ट 2 रीज़न दिया है, जैसे कि क्या था, रॉयल बाथ फॉर द रॉयल फैमिली ओनली, या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए. तो आप और भी रीज़न थिंक कर सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या क्या रीज़न आप इस पे, और मतलब क्या क्या रीज़न आप दे सकते हैं कि अच्छा क्यों बनाया गया होगा ये ग्रेट बात. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक और चीज़ हमें याद करना है. इन दिस केस वी डू नॉट हैव एनी अदर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, नो इंस्क्रिप्शन, नो टेक्स्ट, नो ट्रैवलर्स अकाउंट. तो हमें कोई सोर्स ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है जाकि हमें पता चले कि चलो ग्रेट बात इसलिए यूज़ होता था. किसी भी चीज़ में इसका मेंशन नहीं है, जैसे इंस्क्रिप्शन में भी कोई मेंशन नहीं है, टेक्स्ट में भी कोई मेंशन नहीं है, या फिर ट्रैवल लॉग्स में भी कोई मेंशन नहीं है. ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि वाटर मैनेजमेंट है. ये एक छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं इसके बारे में भी. ठीक है, द हड़प्पा गेव मच इम्पोर्टेंस टू द वाटर मैनेजमेंट and cleanliness. They often had separate areas for bathing in their homes. These were connected to a larger network of drains which generally ran below the street and took the wastewater away. See how technically, how mindfully they have managed everything, and they love cleanliness. Okay, it was very clean, and they had during those time also they have a separate bathroom, isn't it, in their homes, and these were connected with a well-maintained drain again. Okay, drains which was under the street, and that took all the wastewater away. See, देखो यहाँ पे उस टाइम में भी क्या था, ये लोग सब साफ़ सफाई में बहुत काफ़ी सारा इंपॉर्टेंस देते थे. ठीक है, तो उस टाइम में भी क्या था, इनके पास सेपरेट बाथिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ था. जब बाथिंग एरिया बनाते तो वहाँ से वो गंदा पानी निकलता है, तो गंदा पानी के लिए इन्होंने क्या किया था, वो सारा एक नाला बनाया था. नाला अच्छे से प्रॉपर मेंटेन करके रखा था, जो कि स्ट्रीट्स के नीचे, रास्तों के नीचे से इन्होंने बनाया गया था, ये जो रास्ते के साइड्स में से. ठीक है, तो बनाया था, और जो ये सारा वेस्ट वाटर जो है सारा ये लेके जाता था, बह के जाता था. जैसे कि कितने अच्छे से इन्होंने बनाया था, है ना, तब के टाइम में भी. आज हम बात कर रहे हैं बहुत 1000 साल पहले की बात, है ना. तो ये देखो यहाँ पे फ़ोटो भी दिया है, एक ड्रेनेज सिस्टम एट लोथाल गुजरात. तो ये लोथाल का है एक ड्रेनेज सिस्टम. यहाँ पे देखो ये जो साइड में बना हुआ है ना, ये सारा, ये देखो अच्छे से प्रॉपरली इन्होंने कितने अच्छे से बनाया हुआ है तब के टाइम में भी. In Mohenjo-daro, people drew water from hundreds of wells or wells made of bricks. Okay, but in other region it may have been from ponds nearby streams or human-made reservoirs. In the case of Dholavira, the Rann of Kutch in Gujarat, the largest reservoir measured 73 meter in length. See, in Mohenjo-daro, so many wells were been discovered. Okay, so many wells were been excavated. So we came to know that okay, they used to draw water from the well which were made of bricks. But in other regions, they might have drew from ponds or nearby streams, and reservoirs were also been found. What is reservoir? See, a large natural or artificial place where water is stored. See, they used to make a very big tank, okay, to store water. See, they are
saving, like properly using the rainfall, like we used to harvest rainfall water, isn't it? So they stored water, okay, by making what, reservoir, so that people will not face any water problem. Otherwise, see, that time, that means they have this irrigation facilities also, isn't it? And the biggest reservoir that was found was of 73 meters. It is very much big, okay. तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मोहनजोदारो सिटी में जो लोग थे, वहाँ पे लोग थे, पानी कहाँ से लेते थे, वो वेल से लेते थे, क्योंकि वेल, वहाँ पे बहुत सारे वेल्स वगैरह पाए गए हैं, ठीक है, मोहनजोदारो सिटी में, जो कि किससे बना हुआ था, जो ब्रिक्स से बना हुआ था, ठीक है, ईटा से बना हुआ था, ईटे से। तो लेकिन बाकी रीजन में कैसे लेते होंगे पानी, या तो ये पॉन्ड से लेते होंगे, या फिर एक कोई छोटा सा रिवर होगा, स्ट्रीम होगा, या फिर ये ह्यूमन रिजर्वियर, जो बड़े ऐसे पानी रखने के लिए रिजर्वियर्स बनते हैं, ठीक है, जो आर्टिफिशियली बनाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। जब बारिश होता है तो वो सारा पानी वहाँ पे स्टोर हो जाता है कि नहीं, तो जब सूखा पड़ जाता है तो वो पानी अच्छे से यूज़ कर सके। तो ऐसा ही एक बहुत ही बड़ा रिजर्वर कहाँ पे पाया गया, धोलावीरा में पाया गया, जो कि रन ऑफ कुछ, जो कि कहाँ पे, गुजरात में। ये 73 मीटर था इसका लेंथ, जो काफ़ी बड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लास एक्टिविटी भी दिया हुआ है आपको कि एज अ क्लास एक्टिविटी मेजर द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम, स्कूल कॉरिडोर और अ प्ले ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ एनी मेजरिंग टैप, कंपेयर दिस लेंथ विद द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वियर इन धोलावीरा। तो आपको एक क्लास एक्टिविटी दिया हुआ है, जब आप स्कूल में जाओगे तो आप क्लासरूम को मेजर करना और कॉरिडोर को मेजर करना अपने स्कूल को, और आप जैसे इमेजिन करना कि अच्छा ठीक है, इतना बड़ा हो सकता है ये जो हमने अभी देखा रिजर्वियर के बारे में, जो कि 73 मीटर है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि कितना बड़ा होगा वो। देखो यहाँ पे एक पिक्चर भी दिया हुआ है एक बहुत ही बड़ा रिजर्वियर का, जो कि उतना बड़ा है नहीं, ये बस 33 मीटर का है, ठीक है। तो हम देखेंगे, एट धोलावीरा एटलीस्ट 6 लार्ज रिजर्वियर्स वेर बिल्ट with stones or even cut into the rocks. Most of them were connected through underground drains for efficient water harvesting and distribution. See, in Dholavira, such a large reservoir were found. At least 6 large reservoirs were found. Some of them were been built, okay, with stone, and some of them were been cut. Okay, the rocks were been cut and were made, and most of these were been connected with underground drains. See, and very effectively, what they have done, water harvesting, and they used to distribute for agriculture in the farming area. Whatever they have grown something to the crops, they used to water the crop during the dry season. See here, देखो धोलावीरा में और एक क्या चीज़ हमें जानने को मिला, वहाँ पे ऐसे 6 लार्ज रिजर्वर वहाँ पे पाए गए, जो कि कुछ थे जो बनाए गए थे स्टोन से, और कुछ थे उनको काट कर बनाया गया था, जैसे कि पहाड़ को हम काट के बनाते हैं ना, ऐसे ही इनको रॉक्स वगैरह को काट के इन्होंने बनाया था। तो इन्होंने क्या किया, उसको फिर कनेक्ट किया एक अंडरग्राउंड ड्रेन के साथ, नाले के साथ कनेक्ट किया। क्यों कनेक्ट किया, ताकि ये जो वाटर है अच्छे से इसका यूज़ हो सके और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो सके। जैसे कि खेती वगैरह करने के टाइम में, जैसे सूखा, जैसे जब बारिश नहीं होती, जब विंटर टाइम होता है तब बारिश वगैरह नहीं होती है ना, तो ये तब ये इस वाटर को यूज़ करते थे। तो अच्छे से इन्होंने किया। देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, जो कि ये 33 मीटर्स का है, ठीक है, जो कहाँ का है, धोलावीरा का ही है, ठीक है, जो कोई रॉक्स को काट कर बनाया हुआ है। इसको देखो, ऐसा सीढ़ी भी प्रॉपर बनाया हुआ है, नीचे उतर के देखिए ये सारा पानी है यहाँ पे। जैसे 33 मीटर का इतना बड़ा है, तो 73 मीटर वाला कितना बड़ा होगा, हम खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, है ना। तो इसके साथ आज हमारा ये क्लास यहीं पे कंप्लीट करती हूँ मैं, वरना ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये पार्ट 2 कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे पार्ट 3। तो ये हमने यहाँ पे कौन सा पार्ट कवर कर लिया, यहाँ पे अभी पार्ट 2 कवर कर लिया। Okay, so we have completed this part of this chapter. In the next chapter we will see about what Harappa eat. Okay, in the next part about their trading and how this civilization came to an end. Okay, so before you go, don't forget to like, share and subscribe my channel. Okay, and thank you everyone for watching me. See you again in my next class.